हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रैक्स। इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप मुझे पहले से देखते आ रहे हैं तो वेलकम बैक। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप टाइटल से रेजोनेट करते हैं तो जो भी मैंने टाइटल दिया हुआ है आफ्टर रीडिंग, आई डोंट नो ये रीडिंग क्या होने वाली है। जो रीडिंग के बाद जो भी टाइटल होगा इस वीडियो का, दिस वुड बी लाइक बेस्ड ऑन दैट। सो इफ़ यू रेजोनेट विद दैट, देन दिस इज़ फॉर यू। नॉट नो मैटर आप कब देख रहे हो, एक हफ्ते बाद देख रहे हो, एक महीने बाद देख रहे हो, एक साल बाद देख रहे हो, इट इज़ अ सिचुएशन बेस्ड in whatever situation you are. Okay, so let's start with some unicorn messages. What spirit wants to send to you? Let's see आपके लिए क्या मैसेज है. First of all, start with that. Wisdom, closeness, and Archangel Raphael. Okay. So this card of wisdom is saying act with wisdom and people will respect you. Okay. And the second card, closeness, your unicorn is so very close to you. Healing and abundance are coming to you. All these cards of unicorns are in one direction, indicating in a one direction basically. Here I'm seeing that you felt somewhere lonely at this period of time. Somewhere you felt that no one really care about you, no one really think of you. आपके आसपास कोई नहीं, आपने काफ़ी लोनली फील किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको ऐसा लगा है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में बने हों उसने काफ़ी अकेला कर दिया आपको राइट नाउ। यू फेल्ट लाइक loneliness. So here spirit wants to say to you and want you to know that you're not lonely, you're not alone. The god, the higher power, the spirit is with you. He's watching you, he's watching your struggle. Everything you're going through is being noticed. Okay, there is nothing, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अननोटिस जा रहा है। सब कुछ जो भी आप जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो वो सारा कुछ गॉड, यूनिवर्स, हायर स्पिरिट देख रहे हैं, चीज़ें उनके नोटिस में हैं। सो डोंट वरी and don't feel like you're alone in it. Okay, and here the spirit wants you to know that stop telling yourself that you're weak, that you don't know how to act this in this situation, because god has gifted you wisdom. Okay, you know how to deal with the situation, you very well know that how to uh, move forward with this, how to make best out of this. आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके पास वो विजडम है, वो क्लैरिटी है, वो दिमाग है, बुद्धि है, हर चीज़ है कि आप जानते हो कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है कि आप इसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। यू नो वेरी वेल। एंड हियर द हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू क्लियरली। दिस कार्ड इज सेइंग दैट दिस फेज ऑफ योर लाइफ हैज़ सम बिगर पर्पज़। ये जो आपकी लाइफ में जो फेज चल रहा है इसका कुछ पर्पज़ है आपकी लाइफ में। इट वॉन्ट्स you, spirit wants to you to go through this and be the better version of yourself. Spirit, god, universe is preparing you for the higher good. Universe, god, जो भी situation बन रही है वो आपके higher good के लिए है। So a lot of good, healing, abundance, good success, material gains I'm seeing, a spiritual awakening I'm seeing here for you coming. Okay, chaliye, let's see now some tarot messages. What universe, spirit, god wants to tell you, wants you to know about the situation. क्या चीज़ें हैं जो spirit, god चाहते हैं कि आपको पता हो। Let's see. Okay, the star, two of cups, temperance, five of swords, seven of pentacles,
Page of Cups, Eight of Wands, Death, Seven of Swords, and the Hermit. I'm seeing here a lot of healing. I'm seeing here Spirit want to say, God want to say that release your power, release your control. जो आप बार बार चीज़ों में जाके रुक के आगे आप ऑलरेडी बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन वॉट द थिंग यू आर डूइंग दैट यू आर लुकिंग बैक अगेन एंड अगेन. आप थोड़े आगे बढ़ रहे हो, आप वापस से पीछे मुड़ के देख रहे हो कि आपने क्या चीज़ें गलत करी, क्या चीज़ें सही करी, कौन हर्ट हुआ, किसने क्या किया, क्या गलत किया. इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. दिस इज़ नॉट समथिंग द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड. हियर स्पिरिट वॉन्ट टू से दैट रिलीज दिस एनर्जी, रिलीज दिस गिल्ट, रिलीज दिस एंगर. ये जो एंगर है आपका चीज़ों को लेके, गिल्ट है, ये जो आप बराबर से चीज़ों को तोल रहे हो, देख रहे हो कि कौन ज़्यादा गलत था, क्या किया जा सकता था, क्या बेहतर किया जा सकता था, क्या आप कर सकते थे, क्या अदर पर्सन कर सकता था, या फिर जो भी सर्कमस्टेंसेस बनी थी उसमें क्या हो सकता था. वट एवर यू आर ट्राइंग टू एवेल्यूएट इज समथिंग जिससे आप कहीं नहीं पहुंचोगे. अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, विच आई एम सीइंग अ मेजर शिफ्ट कमिंग इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन. एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. आप चीज़ों में जो आप सोच रहे हो ना कि आप जितना देर इस चीज़ में खड़े रहोगे, इट इज़ समथिंग लाइक आप किसी दलदल में खड़े हो और आप जितनी देर खड़े हो के उसके बारे में सोचोगे, ये सोचोगे कितना गंदा है, क्या ये कैसा, ये बदबू दे रहा है, यू विल वेस्ट ओनली योर टाइम. यहाँ पे आप जितनी जल्दी माइंड मेकअप करके, जितनी लाइक जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देके, इफ़ यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नो लॉन्गर सर्विंग योर पर्पस, ये चीज़ अब आपको कहीं भी नहीं लेके जा रही है, दिस थिंग इज़ नॉट गोना लेड यू एनी वे. ओके, आप उतनी जल्दी आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं. क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी कमिंग योर वे, अ लॉट ऑफ लाइक चेंजेस कमिंग योर वे. एक बहुत ही मेरे को एक पोटेंशियल पार्टनर भी यहाँ पे दिख रहा है, दैट देयर इज समवन इन योर लाइफ right now or in upcoming time. There is someone who is very committed to you, loving to you, and like a soulmate kind of energy I'm getting. Okay, so आप जितनी देर यहाँ पे stuck करके रहोगे, these things are they are not happening in your life. Okay, and I'm also seeing here that again I'm seeing a lot of back and forth energy, that you're wasting a lot of time and thinking that what could be done better. अब क्या करो, आप रिवेंज के बारे में सोच रहे हो, कई बार आप थोड़े से स्नीकी हो रहे हो, आप उनकी लाइफ में झांकने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें हैं जो आप समझने की कोशिश करो. दिस इज समथिंग आई एम सीइंग अबाउट समवन. देयर वाज समवन इन योर लाइफ आई एम गेटिंग, एंड यू आर ट्राइंग टू गेट टू नो दैट पर्सन, और दैट पर्सन इज ट्राइंग टू स्नीक पीक इन टू योर लाइफ. और ये दूसरी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो. इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, दैट द अदर पर्सन इज डूइंग दिस, दैट दे आर ट्राइंग टू स्नीक पीक इन टू योर लाइफ. और उसके बाद वॉट दे आर ट्राइंग टू डू इज जस्ट लाइक वो होता ना कि देयर इंटेंशन इज नॉट एट ऑल गुड. ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ में झांक रहे हैं या फिर आप उनकी लाइफ में झांक रहे हो तो यू वॉन्ट टू लाइक वहाँ पे कुछ चीज़ें आप बेहतर करना चाह रहे हो. नो, दिस एनर्जी सो नेगेटिव. आई एम सीइंग हियर दैट द पर्सन इज सो नेगेटिव इन हिज और हर हार्ट, दैट वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये जानने के लिए आ रहे हैं कि हाउ यू आर डूइंग विदाउट देम और हाउ दे आर डूइंग विदाउट यू. वट एवर इट इज़, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है. सो यू बेटर नो. सो देर इज नॉट गोना बी एनी थिंग बेटर. इस सिचुएशन में अब आगे कुछ भी बेहतर नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है. एंड इफ़ यू रियली वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस वेटिंग फॉर यू. बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में वेट कर रही हैं आपके मूव ऑन करके आगे बढ़ने का, इस सिचुएशन से आगे बढ़ने का. आप इस आई एम नॉट सेइंग टू लीव द पर्सन, आई एम सीइंग दैट ये जो आपका मेंटल स्ट्रक है, ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान की जो सिचुएशन है वो वेरी करेगी. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट बेसिकली.
कि ये जो माइंड सेट है ना कि आप बैठ के सोच रहे हो बराबर, बैक एंड फोर्थ मोशन चल रहा है कि क्या सही हो सकता था, क्या नहीं हुआ, क्या किया जा सकता था, क्या नहीं हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और दूसरे के पास जा रहे हो आप, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर जस्ट, मतलब लाइक आप ओवर थिंक करके अपने आप को पूरा ड्रेन कर रहे हो, अपनी एनर्जी ड्रेन करो। दैट यू शुडंट डू। इफ़ यू हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, डू। इफ़ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, just keep yourself out of this. Okay, let this thing go out of you. इस चीज को खुद से जाने दो, इसको लेट गो करो आप। Okay, so yeah, this was all about for you guys, and hope it helps you. If this resonate with your circumstances and whenever you watch it, do let me know in comment section. I would really love to know. And चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू वेरी सून, बाय बाय।